Hymn A64 on page 28. Celebrate God with your hands. Celebrate God with your voice. Celebrate God in all that you do, and He will be with you. Celebrate God with your hands. Celebrate God with your voice. Celebrate God in all that you do, and He will be with you. Listen to Him with your eyes. Listen to Him with your heart. Listen to Him as He speaks with you, and He will be with you. Celebrate God with your hands. Celebrate God with your voice. Celebrate God in all that you do, and He will be with you. क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मिसा बलिदान में हम विशेष रूप से प्रार्थना करें मृत जोसेफ परिवार के सभी मृत आत्माओं के लिए। हम उन सभी आत्माओं को ईश्वर के सामने चढ़ाएं कि ईश्वर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। साथ ही साथ फ्रैंकशो फैमिली के सभी मृत सदस्यों को हम ईश्वर के सामने चढ़ाएं, उनकी आत्म शांति के लिए स्वर्ग राज में उन्हें ईश्वर जगह प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। और आज के इस मिसा बलिदान में ये दोनों परिवार के लोगों की अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम प्रार्थना करें कि ईश्वर इन दोनों परिवार के लोगों को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे। आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें मिस्टर जोशी एवं उनके परिवार के लिए जो कोरोना के सिम्टम से पीड़ित है। हम विशेष रूप से प्रार्थना करें कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे, जोशी एवं उनके परिवार को अच्छे स्वास्थ्य प्रदान करे और ईश्वर की कृपा से एक अच्छे क्रिस्तीय जीवन जी सके। आइए हम इस मिसा बलिदान में हमारे पल्ली के सभी लोगों की निवेदनों को प्रभु के सामने चढ़ाते हुए इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग ले। In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with you. My brothers and sisters in Christ Jesus, today we celebrate the feast, the solemnity of the most holy body and blood of Christ. When we say the solemnity of the holy body and blood of Christ, it is a privilege given to each of us that we can receive Christ in His fullness. We receive Jesus as He is in every Holy Eucharist. And at the Last Supper, when He had His Last Supper with His disciples, Jesus instituted the Holy Eucharist. And since then, daily we celebrate the Holy Eucharist and we receive Christ as He is in the form of bread and wine. What is expected of us is, let us become what we receive. Let us become what we consume. Let us become what we eat. We consume Jesus, we receive Jesus, and we are expected to be like Jesus. We are expected to be Jesus Himself giving to others. So my brothers and sisters,
Let us thank the Lord for this privilege that the Lord is giving us, that we can receive the body and blood of Christ. As we celebrate this solemnity, let us thank the Lord for this wonderful privilege that the Lord is giving us. Let us prepare ourselves and see, are we really worthy to receive Him into our hearts? Am I ready to receive Him into my life? Am I ready to become another Christ? For all those moments of sins and failures, let us ask Lord for pardon and mercy. I confess to Almighty God and to my brothers and sisters that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most serious fault. Therefore I ask the mercy of God, all the angels and saints, and to my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us. May He forgive us our sins and bring us to everlasting life. Amen. Lord have mercy on us all. Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. Christ have mercy on us all. Christ have mercy on us all. Christ have mercy, Christ have mercy, Christ have mercy on us all. Lord have mercy on us all. Lord have mercy on us all. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy on us all. We take in number 628 Gifts and Churches of Christ. महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा, स्वर्ग में प्रभु की महिमा हो, शांति मिलेगी लोगों को, गाएंगे उसकी महिमा हम और धन्यवाद दें उसको, मिलके साथ जाएंगे गीत हम गाएंगे, शक्तिमान है प्रभु गाने हम पाएंगे, स्वर्ग धरा का स्वामी है उसको शीश नवाएंगे, उसके पुत्र की महिमा हो, उसी के गुण हम गाएंगे, यीशु है दाता पाप मिटाता, उसी की हो महिमा, प्रभु यीशु है दाता पाप मिटाता, उसी की हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा, महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा, पिता के दाहिने विराजमान,
विनती हमारी सुन ले। तू ही पावन, तू ही प्रभु, पावन आत्मा साथ है। कहते हैं हम सभी महिमा हो सर्वदा गाएंगे, हम सभी गरिमा हो ईश की। स्वर्ग धरा का स्वामी है, उसको शीश नवाएंगे। महिमा उसके पुत्र की हो, उसके गुण हम गाएंगे। यीशु में दाता, सबका विधाता, उसी की हो महिमा। प्रभु यीशु में दाता, सबका विधाता, उसी की हो महिमा। महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा। महिमा हो महिमा, महिमा तेरी हो महिमा। Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to the sacred mysteries of your body and blood, that we may always experience in ourselves the fruit of your redemption, who lives and reigns with you, God the Father, in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. The first reading, a reading from the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 2 and 3, 14 to 16. God fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know. Moses said to the people, "You shall remember all the way which the Lord your God has led you these 40 years in the wilderness, that he might humble you, testing you to know what was in your heart, whether you would keep his commandments or not. And he humbled you and let you hunger and fed you with manna, which you did not know, nor did your fathers know, that he might make you know that man does not live by bread alone, but that man lives by everything that proceeds out of the mouth of the Lord. Do not forget the Lord your God, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of bondage, who led you through the great and terrible wilderness, with its fiery serpents and scorpions. Wilderness with its fiery serpents and scorpions and thirsty ground where there was no water, who brought you water out of the flinty rock, who fed you in the wilderness with manna, which your fathers did not know." This is the word of the God. मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु तू ही तो।
करूं दिल से तेरी स्तुति मैं तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे मेरी सांसों में तेरा नाम रहे हे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो सारी दुनिया का रखवाला तू सारी दुनिया का रखवाला तू हे प्रभु तू ही तू तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं आराधना करूं दिल से दूसरा पाठ। हम सभी एक क्रिस्तीय विश्वासी एक साथ पवित्र मिसा पूजा में भाग लेते और रोटी और दाखरस के रूप में प्रभु यीशु को ग्रहण कर यीशु में हो जाते हैं। कृत्यों के नाम संत पौलुस का पहला पद। क्या आशीष का यह प्याला जिस पर हम आशीष की प्रार्थना पढ़ते हैं हमें मसीह के रक्त के सहभागी नहीं बनना? क्या वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं हमें मसीह के शरीर के सहभागी नहीं बनाती है? रोटी तो एक ही है, इसलिए अनेक होने पर भी हम एक हैं, क्योंकि हम सब एक ही रोटी के सहभागी हैं। यह प्रभु की वाणी है। Hallelujah, Hallelujah.
तेरे ही वचनों पे हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको है चलना, तेरे ही वचनों पे हमको है चलना, तेरे ही वचनों से हमको है जीना, तू ही राह दिखाता है, तू ही हमको चलाता है, तेरी महिमा अंगाई सदा। Alleluia, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, स्वर्ग से उतरी हुई वह जीवंत रोटी मैं हूँ। यदि कोई वह रोटी खाए तो वह सदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं दूंगा वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा मांस है। इस पर यहूदी आपस में यह कहकर वाद विवाद करने लगे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है? इसलिए यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाएंगे और उसका रक्त नहीं पिएंगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा है और मुझे पिता से जीवन मिला है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको भी मुझसे जीवन मिलेगा। यही वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। यह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। सुसमाचार के शब्द हमारे पापों को मिटा दो। प्रभु यीशु में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हमारे लिए परम चंद्र का विषय पवित्र यूकरिस्ट है, अर्थात प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त। आज के तीनों पाठों में इसी बात की परामर्श की गई है कि पवित्र यूकरिस्ट के विषय में पुराने विधान में किस प्रकार इस्राएलियों को ईश्वर ने मन्ना प्रदान किया, और कुरिन्थियों को लिखते हुए संत पौलुस भी कहते हैं कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त के विषय में अगर कोई भी व्यक्ति चाहे कितने भी बड़े हो,
अगर किसी नेता हो, धर्म गुरु हो, किसी से भी ये कहे कि मैं तुम्हें तुम्हारा शरीर दूंगा खाने के लिए, मैं तुम्हें मेरा रक्त दूंगा पीने के लिए, तो बिल्कुल अजीब सा लगेगा, विचित्र लगेगा। Anyone who says that I will give you my flesh to eat, my blood to drink, will sound strange. Whoever may be, however great may be. कुछ इस प्रकार की परिस्थिति थी यहूदियों के बीच में भी, जब प्रभु यीशु ने खुद उनसे कहा, मैं मेरा शरीर तुम्हें दे दूंगा खाने के लिए, मैं तुम्हें मेरा रक्त दे दूंगा तुम्हारे लिए पीने के लिए, और मेरा ये शरीर खाने से, मेरा रक्त पीने से तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। Jesus said to the Jews, I'll give you my flesh to eat, I'll give you my blood to drink, and you will have everlasting life, eternal life. And this caused a dispute among the Jews. यहूदियों के बीच में एक वाद विवाद का विषय बन गया है। How can this man give us his flesh to eat, his blood to drink, and say to us that you will have eternal life? How is it possible? Is it practical? Is it not against the law and the faith and the customs and the traditions? We have a God whom we believe. But this man, who is among the people for a few years, is telling us, eat my flesh, drink my blood, and you will have eternal life. A strange teaching which they would not accept. एक विचित्र लगाई हुई थी, ये व्यक्ति ये कह रहे हैं कि मेरा शरीर खाओ, मेरा रक्त पीओ, तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। प्रिय भाइयों और बहनों, वाद विवाद का, कंफ्यूजन का जरूर बात बनी, लेकिन किस शरीर और किस रक्त के विषय में प्रभु ने कहा, वे क्या है, उस बात को समझना उनकी सामाजिक परिस्थितियों से या उनके कॉमन सेंस से अलग था। The people failed to recognize him as the Messiah. इसलिए प्रभु ने बार बार ये कहा कि it is not like the manna which you hear about the Old Testament. It is not like any other food. It is something different. ये कुछ अलग है, मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। और ये बात परिपूर्णता तक पहुंच जाती है अंतिम यालू के समय, जहां पर प्रभु अपने शिष्यों के साथ भोजन किया, रोटी और दाखरस लेके उनसे कहते हैं, मेरा शरीर, मेरा रक्त। तब से लेके फिर भाइयों और बहनों, आज तक पवित्र कलीसिया का एक अभिन्न अंग बन गया है पवित्र यूकरिस्ट। From the time of the institution of the Holy Eucharist at the time of the Last Supper till today, Eucharist is the source and summit of our Christian life, and we have accepted it. Not like the Jews, but under the light of our faith. हमारे विश्वास के आधार पर हम इस पवित्र यूकरिस्ट को अपनाते हैं। The Corpus Christi, the feast, the solemnity of the body and blood of Christ is reminding us, my brothers and sisters, what you receive is not something strange. What you receive is not something simple. What you receive is your life. जो आप ग्रहण करते हैं पवित्र मिस्सा बलिदान में, कोई सी एक विचित्र चीज नहीं है, कोई एक प्रसाद नहीं है, पवित्र परम प्रसाद है। यहाँ पर प्रभु यीशु खुद विराजमान है। शुरुआत में मैंने कहा कि what we consume we become, जो हम ग्रहण करते हैं वे हम बन जाते हैं। इसलिए पवित्र यूकरिस्ट हमें दिया गया है। हम प्रभु को ग्रहण करते हैं और हम प्रभु में एक हो जाते हैं, संयुक्त हो जाते हैं। We become one with Christ, my brothers and sisters.
And this happens only under the light of our faith. During the Holy Eucharist, the bread and wine becomes the body and blood of Christ. पवित्र यूक्रिस्ट में दाखरस और रोटी प्रभु के शरीर और रक्त बन जाते हैं और पुरोहित के हाथों से आपको मिल जाते हैं. You receive to the hands of the priest, the minister. And when it is given to you, the body and blood of Christ, you say Amen and you receive it. पवित्र परम प्रसाद जो आप ग्रहण करते हैं, पुरोहित कहते हैं क्रिस्त का शरीर और रक्त, और हम कहते हैं आमेन. इसका अर्थ क्या है? दे दो या गिव मी. आमेन हम इसलिए कहते हैं कि मैं तत्पर हूं, मैं काबिल हूं, मैं तैयार हूं. We say amen, give me the body and blood of Christ because I am ready, I am worthy, and I am ready to become what I receive. जो मैं ग्रहण करने जा रही हूं, वो बन जाने के लिए मैं तैयार हूं. अर्थात प्रभु यीशु जैसा बनना, प्रभु यीशु जैसे मनोभाव अपने जीवन में लाने के लिए मैं तैयार हूं, क्योंकि मैं प्रभु को पूर्ण रूप से ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं. I am ready to become like Christ. I am ready to assume into myself all the qualities of Christ and present to other people as another Christ by receiving the body and blood of Christ. So we say Amen. इसलिए हम कहते हैं कि आमेन. और हमारा कर्तव्य बनता है कि हम जो ग्रहण करते हैं वे बन जाएं. And it is our commitment and responsibility that we become what we receive, what we consume. So my brothers and sisters, प्रिय भाइयों और बहनों, हम कोशिश करें ये पवित्र शरीर और रक्त का, पवित्र यूकरिस्ट का असलियत जानने के लिए. Let us try to understand the real meaning, the real presence of Christ in the Eucharist, which is the source and subject of life. Let us have more commitment, more devotion to the Holy Eucharist, और हम सचमुच उसके लिए काबिल हो जाए, प्रभु को ग्रहण करने के लिए, प्रभु जैसा बनने के लिए, प्रभु के साथ एक होने के लिए. Let us become well united with Christ by receiving the Holy Eucharist. May God bless each of us. Amen. Let us profess our faith. हम अपना विश्वास को घोषणा करें. हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और मरियम से जन्मे, उन्हें पोंटियस पिलातुस के शासनकाल में युद्ध हुआ, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वे मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के धामी के विराजमान हैं और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे. पवित्र आत्मा, पवित्र कलीसिया, दावियों की सभापति, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान, प्रार्थना में विश्वास करते हैं. आमीन. प्रिय भाइयों और बहनों, मरुस्थल में जब इस्राएली लोगों ने भोजन की शिकायत की तो प्रभु ने उन्हें मन्ना प्रदान किया. जब वे प्यासे थे तो प्रभु ने चट्टान से पानी निकालकर उनकी प्यास बुझाई. मुक्ति के नए युग में यूक्रिस्ट में मौजूद यीशु का शरीर तथा रक्त लोगों का पोषण करता है. हम वही प्रभु से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन. हमारे संत पिता, सभी धर्माध्यक्ष और याजकगण यूक्रिस्ट के अंशस्कार हैं, वह पवित्र मिस्सा के माध्यम से विश्वासियों को ईश्वर के करीब ला सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं. हे पिता हमारी प्रार्थना सुन. युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करें कि वे ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की बुलाहट को पहचान सकें और अपने आप को ईश्वर तथा लोगों
की सेवा के लिए समर्पित कर सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। दुनिया के सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करें कि वे यूक्रिस्ट को भक्तिपूर्वक मना सकें और ईश वचन के मर्म को समझते हुए ईश्वर के करीब आ सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना को हर पल्ली में बढ़ावा दिया जाए और इसके लिए उपयुक्त समय निकाला जाए, जिससे कि विश्वासी प्रभु के समक्ष प्रार्थना और आराधना में शांति क्षण बिता सकें और अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए पोषण पा सकें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित हम सभी के लिए कि प्रभु यीशु के शरीर और रक्त का पर्व प्रभु यीशु पर हमारे विश्वास को मजबूत करे, जो खुद को रोटी तथा ताकत के रूप में देते हैं। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी मृत आत्माओं के लिए, विशेष रूप से जोसेफ एंड फ्रांशो परिवार के सभी मृत आत्माओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए हम उनकी आत्म शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करते हैं सभी बीमारों के लिए, हमारे बीच में, हमारे पल्ली में और हमारे समाज में जितने भी लोग बीमार हैं, उन सभी को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हैं और उनकी चंगाई के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं मिस्टर जोशी एवं उनके परिवार के लोगों के लिए। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू चंगाई दाता है। हमारे इस पल्ली के सदस्य को विशेष रूप से चंगाई प्रदान करने की कृपा कर, ताकि वे भले चंगे होकर आपकी स्तुति कर सके। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे बीच में जितने भी बुजुर्ग हैं, जितने भी बच्चे हैं, उन सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु उन सबको सुरक्षित रखे, बीमारियों से दूर एवं यीशु प्रेम में उन्हें लाने की कृपा कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे पल्ली के सभी युवाओं को, बच्चों को तेरे चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु ने विश्वास में आगे बढ़ने के लिए कृपा प्रदान कर। इसके लिए हम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम हमारे पल्ली के सभी लोगों के निवेदनों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए इस मिसा बलिदान में जितने भी लोग भाग ले रहे हैं, उन सभी के लिए हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं और उन सबको ईश्वर की कृपा एवं प्रेम प्रदान करने की कृपा कर। इसके लिए पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हम अपनी निजी निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। God our Father, we thank you for the gift of your Son Jesus, who instituted the Eucharist during the Last Supper. In the Eucharist, Jesus offers his own body and blood for our spiritual nourishment. Give us the grace that we may participate in the Eucharist with devotion and spiritual preparation. We make this prayer through Christ our Lord. Amen. Please take hymn number 695 की संख्या 650। उपहार लिए चरणों में आए प्रभु, चरणों में आए प्रभु, स्वीकार कर लो बरसा गया है प्रभु, बरसा गया है प्रभु, अपना लो Sorry.
भेंट में तुझको चढ़ा के प्रभु स्तुति का रस भेंट में तुझको चढ़ा के प्रभु बदलो तुम शरीरत में तेरे शरीरत में बदलो तुम शरीरत में तेरे शरीरत में अपना लो स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर अपना लो स्वीकारो जग के स्वामी जगदीश्वर। Pray, brothers and sisters, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. Sacrifice in your hands, for the praise and glory of His name, for our good and of the Almighty Holy Church. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, whose signs are to be seen in mystery in the offerings we that we have present through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Lord. Let's give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For at the Last Supper with His apostles, establishing for the ages to come the saving memorial of the cross, He offered Himself to you as the unblemished Lamb, the acceptable gift of perfect praise, nourishing your faithful by this sacred mystery. You make them holy so that the human race bounded by one world may be enlightened by one faith and united by one bond of charity. And so we approach the table of this wondrous sacrament so that bathed with the sweetness of your grace, we may pass over to the heavenly realities before shadowed. Therefore, all creatures of heaven and earth sing a new song in adoration, and we with all the host of angels cry out without end we acclaim. Please take hymn number 719, keys and caps also open this. पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर तेरी महिमा तेरी प्रशंसा आचरित है अवनी अंबर तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के धन्य है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं धन्य है जो आते हैं नाम प्रभु का जो गाते हैं तेरे ही जय जयकारों से गूंज रहा सर्वोच्च गगन प्रभु पावन हे पावन प्रभु पावन हे पावन 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 प्रभु परमेश्वर
पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर पावन 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 प्रभु तेरा नाम पावन 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 प्रभु तेरा नाम You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like a dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you." तू ही मेरे जीवन की रोटी है, तू ही मेरे जीवन की रोटी है। खाता रहूं मैं, खाता रहूं मैं, तेरी महिमा गाता रहूं। In a similar way, when supper was ended, he took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." तू ही मेरे जीवन का दास है, तू ही मेरे जीवन का दास है। पीता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, तेरी महिमा गाता रहूं। The mystery of faith. क्रिस बगैर, क्रिस जीवते, क्रिस महिमा के साथ विदाएंगे। Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that the partaking of the body and blood of Christ, he may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Francis of Pope, Alberta Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him and with him and in him, O Lord Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. At the Saviour's command and formed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace nowadays, that by the help of your mercy, we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever.
Lord Jesus Christ, who said to your apostles, peace I leave you, my peace I give you. Look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. Peace of the Lord be with you always. And with your spirit. Let's offer each other the sign of peace. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, grant us peace. Behold the Lamb of God, behold him who takes away the sins of the world. Blessed are those called to the supper of the Lamb. Lord, I am not worthy that you should enter my life, but only say a word, and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ be with you everlasting. तू ही मेरे जीवन की रोटी है, तू ही मेरे जीवन का दाखिल है, तू ही मेरे जीवन की रोटी है, तू ही मेरे जीवन का दाखिल है। खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, खाता रहूं मैं, पीता रहूं मैं, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का दाखिल है, तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का दाखिल है। आइए हम सब मिलकर एक साथ प्रार्थना करें। क्रिस्त की आत्मा मुझे पवित्र कर, क्रिस्त का बदन मेरी रक्षा कर, क्रिस्त का रक्त मुझे जोश से भर दे, क्रिस्त का पत्थर पानी मुझे धो डाल, क्रिस्त का दुख मुझे शक्ति दे। हे प्यारे यीशु, मेरी प्रार्थना सुन ले, अपने घावों के भीतर मुझे छुपा ले और मुझे कभी तुझसे अलग न होने दे। मुझे अपने शत्रुओं से बचा और मुझे मेरे पास आने दे, ताकि संतों और दूतों के साथ युग तेरी स्तुति कर सके। हम अपने निर्माणाधीन गिरजाघर के लिए और उसकी आशीष के लिए हम प्रार्थना करें, ताकि पिता परमेश्वर जल्द से जल्द वो वक्त लाए, ताकि उस गिरजाघर की आशीष के साथ हम एक नए जोश, एक नए उमंग, और जो ईश्वर ने इस महामारी के बाद हमें एक नया जीवन प्रदान किया है, उस गिरजाघर में उसकी महिमा और उसकी स्तुति के लिए एक